Students, here today we find a formula for distance between 2 points x1 y1 and x2 y2. Now we draw x axis and y axis. So this is here x axis, this is horizontal line is x axis and this vertical line is y axis. And point of intersection of x axis and y axis, this is denoted by O and this is the origin. Now we take any point P and Q whose coordinates are x1, y1 and x2, y2. So let us suppose that let P x1, y1 and Q x2, y2 be any 2 points on Cartesian plane. Let us suppose that here 2 points P and Q whose coordinates are x1, y1 and x2, y2 on the Cartesian plane. Draw perpendicular PL from P on x-axis and QM from Q on x-axis and PN from P on QM. So here draw perpendicular PL from P on x-axis, QM from Q on x-axis and PN from P on QM. Now join these points P and Q. Join P and Q. आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट्स P और Q एज्यूम किए गए हैं. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 तथा Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है. फिर P पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है PL और Q पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है QM. इसी तरीके से P पॉइंट से QM पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है PN. Now we know that here the coordinate of P be x1, y1. So OL is equal to x1 and PL is equal to y1. Similarly, here the coordinates of point Q be x2, y2. So OM is equal to x2 and QM is equal to y2. So we find here LM is equal to OL minus here LM is equal to OM minus OL. So we get here OM is x2 and OL is x1. So LM is x2 minus x1. And from the figure we can see that Pn is equal to LM. So this is equal to Pn. Now we find here Qn. So from the figure Qn is equal to Qm minus Nm. Here Qm is equal to y2 and Nm is equal to PL and PL is equal to y1. So Qn is equal to y2 minus y1. आप देख सकते हैं फिगर से यहाँ P पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो OL जो होगा वो x1 के इक्वल होगा, PL y1 के इक्वल होगा. इसी तरीके से Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट x2 y2 है इसलिए OM x2 के इक्वल होगा और QM y2 के इक्वल होगा. अब LM निकालने के लिए OM में से OL माइनस करेंगे तो OM में से OL माइनस करेंगे तो LM निकलेगा. OM यहाँ पर x2 के इक्वल है जबकि OL x1 के इक्वल है तो x2 में से x1 माइनस करने पर LM मिलेगा और LM यहाँ पर PN के इक्वल है तो ये PN हो गया. इसी तरीके से QN जो है निकालने के लिए QM में से NM माइनस करेंगे. अब QM y2 के इक्वल है जबकि NM PL के इक्वल है और PL y1 के इक्वल है तो QM इज इक्वल टू होगा y2 माइनस y1. So we can see here this PQN is right angle triangle.
here in right angled triangle, right angled triangle, right angled triangle, number one, in right angled triangle PQN, PQN, here PQ is the hypotenuse, so by Pythagoras theorem PQ square is equal to PN square plus QN square। आप देख सकते हैं यहाँ पर PQN एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें PQ हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है और QN जो है ये आपका लंब हो गया और PN आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होगा, यानी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। Here we can see Pn is equal to x2 minus x1, so we put here x2 minus x1 whole square plus Qn is here y2 minus y1 whole square. So PQ square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So PQ is equal to under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is the formula for finding distance between two points whose coordinates are x1 y1 and x2 y2 on the Cartesian plane। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज PQN में जो कर्ण है इसका स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर PN स्क्वायर और QN स्क्वायर के इक्वल होगा सम के। अब PN यहाँ पर x2 माइनस x1 के इक्वल है, इसका होल स्क्वायर हो गया, QN y2 माइनस y1 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि आपको ज्ञात करनी है किसी कार्तीय तल पर कार्टेशियन प्लेन पर, तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट इफ वी प्रूव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम पॉइंट्स, नंबर वन, इफ यू प्रूव स्क्वायर, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए आपको याद रखना होगा स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर के लिए जब भी आएगा तो आप 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ये आपको शो करना है। नंबर 2, अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करने को आता है, नंबर 2 रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी बट और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। सो अपोजिट साइड्स आर equal and diagonals are also equal। Number 3, if we have to prove that rhombus, RHOMBUS, rhombus means समचतुर्भुज। रोम्बस को समचतुर्भुज कहते हैं, रेक्टेंगल को आयत कहते हैं और स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। तो रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो जब भी आपको रोम्बस प्रूफ करना आएगा तो आप प्रूफ करेंगे 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और अगर आपको पैरेललोग्राम आता है यानी समांतर चतुर्भुज, तो अपोजिट साइड्स को आप इक्वल प्रूफ करेंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आता है पैरेललोग्राम बट नॉट स्क्वायर, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, तो इसके लिए आप अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल
rectangle, parallelogram but not rectangle. So here we have to prove that opposite sides are equal but diagonals are not equal. Opposite sides are equal but diagonals are not equal. अगर आपको ये प्रूफ करना है रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, तो इसके लिए आपको शो करना पड़ेगा कि all four sides are equal but diagonals are not equal. So all sides are equal but the diagonals are not equal. So here we learned about some points. फर्स्ट, अगर आपको स्क्वायर शो करना है, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो स्क्वायर में फोर साइड्स इक्वल होती हैं जबकि डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के लिए आपको शो करना पड़ेगा अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। रोम्बस में फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। एंड रोम्बस में आपको प्रूफ करना है रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, सो ऑल साइड आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सो थैंक यू।